Hello kids, good morning. Good morning, kids. Here is your Tamanna ma'am. And here is your Ruchika ma'am. How are you all? You all are fine, fit and cheerful. Yes, ma'am. So, shall we start our day? Yes, ma'am. Are you all ready? Yes. Close your eyes, join your hands and start Namokar Mantra. Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Aryaram, Namo Jayaram, Namo Loi Sarve Sahuram, Eso Panchanamokaro, Sarve Paupadasano, Manglaram Cha Savesi. Paramam Havai Mangalam. Continue with Guru Mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri, Guruve Namaha. Continue with Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuvaswaha, Tatsaviturvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nam Prachodaya. Slowly open your eyes, put your hands down. How you all are feeling? Ma'am, we all are feeling relaxed and cheerful. Oh, wow. Okay, kids, now tell me what is the date today? Today is 23rd October 2020. And what is the date today? Today is Friday. So today is 23rd October 2020 and today is Friday. So kids, do you remember what we have done last day related to English subject? We have done English letters, that is E to H. हमने कौन से letters की formation सीखी थी? E to H. आज हम new letters की formation सीखेंगे, that is I to L. Okay kids? So first of all, what you have to do? हम किस पे लिखते हैं? Notebooks. So take out your notebooks and pencils and erasers. And remember, you have to write very neatly. बहुत सुंदर सुंदर लिखना है. Right kids? And मैम के साथ साथ लिखना है. तो चलिए. So अब हम यहाँ पर लिखेंगे letters. Okay kids. So first letter हम लोग first revise करें. हमने last day कौन से letters किए थे? E to H. So first letter is letter E. Then how we will make E? Put your pencil on the first dot. Come down by making a standing line. Again, put your pencil on the first dot. Make a sleeping line till dot. Put your pencil on the line second and make a short sleeping line till dot. Again, put your pencil on the third line and make a sleeping line till dot. Which letter is this? Letter E. 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 Now kids, what comes after E? Letter F. Now how we will make F? Put your pencil on the first dot. Come down by making a standing line. Again, put your pencil on the first dot. Draw a sleeping line till dot. Now put your pencil on the line second and draw a short sleeping line till dot. Now kids, which letter is this? Letter F. F. For. F. For. Now kids, what comes after F? Letter G. Now how we will make G? Put your pencil on the first dot. Come down by making a half C. हमें third line तक आना है and half We will make circle. left half circle. Okay kids, now go up till line second. Then you have to go a little bit inside and come outside by making a sleeping line. Now come down by making a short standing line. Which letter is this? Letter G. G. G.
G. G. Now kids, what comes after letter G? Letter H. Now kids, how we will make H? Put your pencil on the first dot. Now come down by making a standing line. Again, put your pencil on the another dot. Come down by making a standing line. Now kids, we have to join these two standing lines by a sleeping line. Now put your pencil in the middle of the line and join them by sleeping line. Now which letter is this? Letter H. Letter H. 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 Now kids, put your pencil on the first dot. Draw a sleeping line till dot. Again, put your pencil on the line third and draw a sleeping line till dot. Now kids, again put your pencil in the middle of the first line and come down by making a standing line. Which letter is this? Letter I. I. E. I. E. Now kids, what comes after I? Letter J. Now how we will make J? Put your pencil on the first dot. Make a sleeping line till dot. Now put your pencil in the middle of the line and come down. You don't have to touch the dot. Then go up by making a curve till second line. Which letter is this? Letter J. 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 Now kids, what comes after J? Letter K. Now kids, how we will make K? Put your pencil on the first dot. Come down by making a standing line. Again, put your pencil in the middle of the second line and go up by making a upward slant line. Again, put your pencil in the middle of the line and come down by making a lower slant line. Which letter is this? Letter K. I, J, K. Now what comes after K? Letter L. Now how we will make L? Put your pencil on the first dot. Come down by making a standing line. Now put your pencil on the line third and make a sleeping line till dot. Which letter is this? Letter L. 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 So kids, we hope आप बहुत अच्छे से लिख रहे हैं. Very good. चलिए अब हम इस लाइन को वापस से लिखते हैं. अच्छे से फॉर्मेशन देखनी है हमें. Okay, so first letter is Letter I. now how we'll make I? Put your pencil on the first dot. Draw a sleeping line till dot. Now come to the third line, put your pencil on the first dot and then again draw a sleeping line. Now put your pencil in the middle of the first line and come down by making a standing line. Which letter is this? Letter I. I. E. I. E. Now kids, we will make J. Put your pencil on the first dot. Make a sleeping line till dot. Then put your pencil in the middle of the first line. Come down. And remember, you don't have to touch the line. Then go up by making a curve till line second. Very good. This is letter J. 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 Now kids, we will make K. Put your pencil on the first dot. Come down by making a standing line. Now put your pencil in the middle of the second line. Go up by making a upper slant line. Again put your pencil in the middle of the second line. Come down by making a lower slant line. Which letter is this? Letter K. 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 I. J. K. And the last letter is? Letter L. Okay, so we'll make L. Put your pencil on the first dot. Come down by making a standing line. Again, put your pencil on the line third and make a sleeping line till dot. Which letter is this? Letter L. 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 L.
So kids, चलिए अब हम इसको वापस से रिवाइज कर रहे हैं बहुत अच्छे से. Yes, ma'am. I E I E J J J J K K K K L L. L L. So kids, हमें ये पूरा पेज अपने मम्मा पापा के साथ अच्छे से और बहुत नीट हैंड राइटिंग में करना है. राइट किड्स? देन मैम आपको स्टार भी देंगी. वाओ मैम, अच्छी हैंडराइटिंग में करने से स्टार मिलेगा. यस मैम. वाओ. सो अब मैम बहुत सारी स्टडी हो गई, अब थोड़ी सी मस्ती की जाए. यस मैम. आर यू ऑल रेडी? मस्ती के लिए रेडी है ना हम सब? यस. तो हम कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं सुंदरवन में. चलिए मैम के साथ जल्दी से आएंगे. अब हम जाएंगे सुंदरवन में. देखिए ये है हमारा सुंदर सा सुंदरवन. ओह वाओ मैम, ये सुंदरवन है. यस मैम, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. ओके. और So kids, once upon a time there lived two best friends in Sundarban. वाओ मैम, टू बेस्ट फ्रेंड्स. Yes ma'am. So they were A crow. and a hen. Wow. So kids, one day what happened? One day the hen went to the crow and said, crow को क्या बोला? क्रो को बोला, क्रो भैया विंटर सीजन आने वाला है, उस समय खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. हैन बहना, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो. हमें हाँ. उसके लिए कुछ करना चाहिए. क्रो भैया, क्यों ना हम मिलकर मेरा जो खेत है उसमें अनाज उगा लें. अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है. तो चलो क्रो भैया, हम खेत में चलकर हल जोतते हैं. तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ. ठीक है क्रो भैया, जल्दी से आना. अब क्रो हैन खेत में जाती है और खेत में जाकर क्या करती है? अपना खेत जोतती है हल से. अब वो खेत जोतकर अरे क्रो भैया तो आए ही नहीं, और वो सारा खेत जोतकर वापस क्रो भैया के पास जाती है और जाकर बोलती है, अरे क्रो भैया आप तो आए ही नहीं, मैंने पूरा खेत खुद ही जोत लिया, चलो अब मिलकर बीज बो लेते हैं. तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ. अब मुर्गी वापस खेत की तरफ जाती है बीज बोने. अब वो धीरे धीरे करके बीज बोती है. अरे भगवान, कितनी गर्मी है, मैं तो थक कर चूर हो गई हूँ. कौवे भैया तो सच में बहुत ही लेजी है, आए भी नहीं. वापस मुर्गी थक कर कौवे भैया के पास जाती है और बोलती है, क्रो भैया आप क्या करते हो? मैंने अकेले ही फार्म में हल जोत लिया, अब बीज भी बो दिए, अब अच्छी फसल के लिए बराबर पानी भी देना होगा, तो चलो हम मिलकर खेत में पानी देने चलते हैं. तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ. ठीक है कौवे भैया, अब आप जल्दी से आना, तब तक मैं खेत में पहुंचती हूँ. अब मुर्गी जाती है धीरे धीरे खेत में और खेत पर जाकर क्या करती है? पानी देती है. अब मुर्गी बोलती है पानी देते हुए,
हे भगवान, अनाज उगाना भी कितना कठिन काम है। हमारे फार्मर्स कितनी मेहनत करते होंगे। सच में उन्हें तो सल्यूट करना चाहिए। उफ, थक कर चूर हो गई मैं तो। अब और क्रो भैया को तो बिल्कुल भी काम नहीं करते। अब हैन वापस जाती है क्रो के पास और क्रो भैया को जाकर क्या बोलती है? क्रो भैया, आप कितने लेजी हो। आप खाद जोतने भी नहीं आए, बीज डालने भी नहीं आए और खेतों में पानी देने भी नहीं आए। अरे वो हैन बहना, हुआ क्या कि मेरी ना आंख लग गई थी और मैं सोता ही रह गया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं कौवे भैया। चलो अब खेत में तो देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। हमारा खेत हरा भरा लहला रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। फसल काटने का समय आ गया है कौवे भैया, तो चलो मेरे साथ अब फसल तो काट लेते हैं साथ में। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। ठीक है कौवे भैया, लेकिन प्लीज इस बार जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। अब मुर्गी वापस खेत में जाती है फसल काटने और फसल काटते काटते वो बहुत थक जाती है। उफ, कितनी थकान हो गई है आज तो मेरे को। अरे वाह, मुझे तो मजा ही आ गया। मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ा, सारा काम हैन बहना ने अकेले ही कर लिया। देखा, इसे कहते हैं स्मार्टनेस। ये क्रो भैया तो सच में बहुत ही आलसी और कामचोर हैं। हे भगवान, इन्हें बुद्धि देना। अब मुर्गी थक कर वापस क्रो भैया के पास जाती है और जाकर कहती है, क्रो भैया, आप तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते। इतना लेजी होना ठीक नहीं है। देखो, मैंने अकेले खेतों में मेहनत कर फसल उगाई, अब काट भी ली और मैंने फसल के 2 बराबर हिस्से भी कर लिए। तो अब मेरे साथ चलो और अपना हिस्सा तो ले लो। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। ठीक है कौवे भैया, इस बार तो जरूर से आना। इस बार तो हमारा सब तैयार हो गया है और आपको अपना हिस्सा लेने आना है, तो इस बार जरूर से आ जाना। अब मुर्गी खुश होके वापस अपने खेत की तरफ जाती है और उसके 2 किए हुए हिस्सों में से अपना एक हिस्सा उठाकर बोलती है, मैं तो अपना हिस्सा लेकर जाती हूँ। अब कौवे भैया आकर अपना हिस्सा खुद ले जाएंगे और इस तरह खुशी खुशी मुर्गी अपना हिस्सा लेकर चली जाती है। अब इस प्रकार हैन ने अपना हिस्सा लेकर घर चली जाती है, जबकि क्रो अपना हिस्सा लेने नहीं आता, क्योंकि वह बहुत लेजी था, बहुत ही आलसी था। अब एक दिन क्या हुआ? एक दिन अचानक जोरों की बारिश हुई, बहुत हैवी रेनफॉल हुई। उस बारिश में खेत में पड़ा कौवे का अनाज पानी में बह जाता है। अब जब क्रो को भूख लगती है और वो खेत में अनाज लेने जब आता है, तो वहां कुछ भी नहीं होता है, उसका अनाज तो बह चुका होता है। क्रो को जब भूख लगती है वो उड़ता हुआ खेत में पहुंचता है। खेत में पहुंचकर बहुत ही हैरान हो जाता है, बोलता है, देखो ये क्या, मैंने हमेशा काम से जी चुराया है, तो आज मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं। हे भगवान, मुझे काम ना करने की इतनी बड़ी सजा मिल रही है।
हाय राम, आज तो भूख से मेरी जान ही निकल जाएगी। हाय भूख, हाय भूख। और कौवा भूख के कारण वहीं मर जाता है। सो बच्चों, हमने कहानी देखी क्रो एंड हेन की, और हमने इससे क्या सीखा कि हमें हमेशा अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। मैम आपने देखा जैसे हैन ने अपना सारा काम ईमानदारी और मेहनत से किया, तो हैन के पास बहुत सारा अनाज था, वो अपना सारा विंटर सीजन आराम से निकाल सकती है। यस मैम, और जबकि कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया, वो बहुत ही आलसी था, लेजी था, कामचोर था, और उसे लगता था कि मेरी सारा काम मुर्गी बहना कर रही है और मैं तो आराम कर रहा हूँ। जबकि आखिरी में उसके लिए विंटर सीजन में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और वो भूखा ही मर गया। आपको पता है मैम, क्रो के पास कुछ क्यों नहीं बचा? क्योंकि हमेशा मेहनत का फल ही मीठा होता है। यस मैम। हैन ने मेहनत की थी तो हैन के पास बहुत सारा अनाज था, वो अपना पेट भर सकती थी। क्रो ने मेहनत नहीं की तो उसके पास कुछ भी नहीं था, उसका फल मीठा नहीं हुआ ना। यस मैम। तो मैम यहाँ पर हमने क्या सीखा? काम चोरी और आलस जैसी बुराइयों की हार हुई और ईमानदारी और मेहनत जैसी अच्छाई की जीत हुई। तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। Yes, ma'am. राइट किड्स? सो ऐसे ही जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। Yes, तो ma'am. हमें भी कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, हमें बहुत मेहनत से हर काम को करना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ईमानदारी से करना चाहिए। यस मैम, तो हमें आज क्या प्रॉमिस करना है? ये स्टोरी सुनकर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिला। तो आज हम एक प्रॉमिस करेंगे, हम सारी बुरी आदतें छोड़कर सिर्फ अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे। यस मैम, सारी गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे अपनी लाइफ में और बुरी आदतों को भूलकर उसे छोड़ देंगे। यस मैम। राइट किड्स? ओके मैम, आपको पता है कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? यस मैम, आपको पता है दशहरा आने वाला है। ओके, एंड कब है दशहरा? मैम दशहरा है संडे को। ओह वाओ मैम, आपको पता है हम दशहरे पर क्या करते हैं? यस मैम, हम दशहरे पर रावण जलाते हैं। अब रावण जलाने का क्या रीजन है पता है? रावण में बहुत सारी बुराइयां थी, तो हम बुराइयों का अंत करते हैं, है ना? हम हर साल रावण इसीलिए जलाते हैं कि हमें हमारी लाइफ में बुराइयां नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छाइयां चाहिए। राइट? तो ऐसे ही जैसे दशहरे पर बुराई को हारकर अच्छाई की जीत हुई, Yes, रावण ma'am. को मारकर सारी बुराई का नष्ट हो गया और श्री राम ने रावण का अंत कर दिया, मतलब बुराई का भी अंत कर दिया। Yes, तो ऐसे ma'am. ही हमें भी अपनी लाइफ में सारी बुराइयों का अंत कर देना चाहिए और अच्छी अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना चाहिए। यस तो मैम। चलिए मैम, अब हम एक छोटी सी कविता करें दशहरे पे। वाओ मैम, कविता। यस मैम। यस मैम, आप सबको कविता बहुत ध्यान से सुननी है और मैम के साथ रिपीट करनी है। ओके। देखो दशहरा आया है, देखो दशहरा आया है, खुशियाँ ढेरों लाया है, खुशियाँ ढेरों लाया है, रावण हमने जलाया है, रावण हमने जलाया है, को गले लगाया है, अच्छाइयों को गले लगाया है। वेरी गुड किड्स, Very क्लैपिंग। nice. मैम हमारे बच्चे सब कुछ बहुत ध्यान से सुनते हैं। यस मैम, दे ऑल आर गुड किड्स एंड गुड लिसनर्स। सो अब आपको क्या करना है, ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स को, मम्मा पापा को, अपनी फैमिली को, सबको सुनानी है।